Everybody, and welcome back to my channel again. This is the fourth video of FPD, Prosthodontics and Synopsis, and in this video I'll be discussing the classifications of pontics. So earlier we had discussed a lot of things about pontics, the surfaces, what are the characteristics, how a particular surface should look like. We have discussed so far, as well as we have discussed retainers also in the previous video. We discussed classifications of retainers also and different examples. Now in this video we'll be talking about classifications of pontics. So the people who are new on my channel, I want to say that I complete all 20 subjects of dentistry in this channel. So if you want to learn something new and you are struggling for the basic informations, you can join my channel. And if you like my content, do like it, comment and subscribe, because it motivates me to make more and more videos for you every time. So as well as all the people who are actually loving and putting so lovely comments, I'm really happy to see all of this. Thank you for this, and I'll try to do more and more better for you. So let's get started. This is the classification of pontics. Okay, so on the basis of material, on the basis of contacts, on the basis of fabrications, we have divided pontics. So if I just revise a quick, what is a pontic? And I think everybody knows this, but for those who are just seeing my video for the first time, I'll just want to elaborate something so that this lecture will not be a waste for them. Okay, so if there is a space over here, is a missing tooth over here, so we have this thing, that is pontic, which is actually replacing the missing tooth. Okay, so this is pontic. These are retainers, and in between we have connectors, and these are the abutments from which we are taking support. Okay, I think everybody knows this. Now talking about pontics on the basis of materials. Okay, we have a lot of materials. So particularly we have three things. We have either all cast material, that is 100% metal. We can have all cast, that is all metal. We can have metal ceramic. Okay, I have also told you that ceramic is same as porcelain. There's no difference. And it can be porcelain jacket. पोर्सलिन जैकेट इज़ व्हाट? पोर्सलिन जैकेट का मतलब होता है सारा का सारा मटेरियल पोर्सलिन से बना हुआ है. मेटल सिरामिक का मतलब होता है थोड़ा सा पार्ट मेटल का है, इनसाइड जो कोपिंग है वो मेटल की है, उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है वो सिरामिक की है. ये किस लिए बनाते हैं हम ऐसा मेटल सिरामिक? ताकि एस्थेटिक्स के लिए, बिकॉज ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है सिरामिक या पोर्सलिन की, और अंदर ब्लैक कलर का मेटल होता है. ऑल कास्ट मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे हमें एस्थेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लैक कलर का मटेरियल भी लगा सकते हो, दैट इज़ ऑल कास्ट. ओके, नाउ मेटल कैन डिफर. मेटल्स में बहुत टाइप्स होती हैं, वो चीज़ डिफर होती है, बट मेनली तो पोर्सलिन है या मिक्सड है या फिर मेटल है, ऐसा होता है. तो मटेरियल्स के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेटल सिरामिक्स, जिसमें मेटल का कोपिंग है अंदर ब्लैक कलर का, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर है. ठीक है. एडवांटेजेस क्या होते हैं? एस्थेटिकली एस्थेटिक एरियाज में देते हैं, बायोकम्पैटिबल होता है. डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसको फैब्रिकेट करना मुश्किल होता है, बनाना मुश्किल होता है कि एक लेयर पहले बनाओ फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनाओ, इफ़ द अपार्टमेंट इज़ नॉट मेटल सिरामिक. ठीक है. एंड काउंटर इंडिकेशन इज लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में आप नहीं देते उनको, लंबे टाइम के लिए नहीं देते. तो इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस, एडवांटेजेस, यू शुड नो अबाउट दिस बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. तो अब आपको क्या पता चला है? मेटल सिरामिक जो है कंपैटिबल है, एस्थेटिक है, बट लॉन्ग स्पैन में नहीं दे सकते और डिफ़िकल्ट टू फैब्रिकेट है. ऑल मेटल में कुछ नहीं होता, एक मेटल होता है बस. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसको बनाना इजी है, सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, और स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है क्योंकि इसके ऊपर वाइट कलर का लेयर नहीं है. वाइट कलर की जो ये पोर्सलिन और सिरामिक होता है ये ब्रिटल होता है, बट मेटल अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है. डिसएडवांटेज क्या है कि एस्थेटिक्स ऑब्वियसली ख़राब लेते हैं, प्लस परमिबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स, दे कैन बी परमिबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स. ठीक, गर्म ठंडा लग सकता है बंदे को. ठीक है, टेम्परेचर और थर्मल फ्लूइडिटी होती है.
इंडिकेशंस कब देते हैं? जब मोलर्स होते हैं हमारे पास, पोस्टीरियर दांत होते हैं, मैंडिबुलर मोलर्स हो गए, स्पेशली हाई स्ट्रेस, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, कुछ पर्टिकुलर दांत होते हैं जिन पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ा रहता है, उन एरियाज़ में हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रेंथ वाली चीज़ ज़्यादा है। प्लस ब्रक्सिज्म, जो लोगों को दांत चबाने की आदत होती है, स्ट्रेस जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, दांत घिसने की आदत होती है, चबाने की आदत होती है, उनके दांत घिस जाते हैं ऊपर से ना, उन लोगों में भी हम मेटल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। काउंटर इंडिकेशन जहाँ पे एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे इनको नहीं दे सकते। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मैं ऑल मेटल कहाँ देंगे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हाई स्ट्रेस एरियाज़ हैं, ब्रक्सिज्म है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? एस्थेटिक्स अच्छे नहीं है, परमेबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स, टेम्परेचर वगैरह, और अच्छी बात क्या है कि स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है इसकी। फिर हम बात करते हैं, ओके, क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इंडिकेटेड फॉर इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट एविडेंस ऑफ ब्रक्सिज्म। सो ऑप्शन में सिरामिक है, लो फ्यूजिंग सिरामिक है, सिल्वर अमलगम है। अमलगम जो होता है ना, वो इतना स्ट्रेंथ नहीं होता उसका इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मेटल्स, उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल आता है दैट इज़ रेजिन विनर्ड पॉन्टिक्स। नाउ विनर्स हैं ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट, दिस इज़ अ विनर, और विनर को हमने दांत से चिपकाया हुआ है रेजिन सीमेंट से, ठीक है। तो रेजिन विनर्ड पॉन्टिक्स। अब इनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ लंबा ऐसा कुछ नहीं होता। कन्वेंशनल गोल्ड अलॉय सबस्ट्रक्चर्स, अंदर का जो सबस्ट्रक्चर है वो गोल्ड का बना होता है, ठीक है। मतलब कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या होती है कि इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम होती है कंपेयर टू मेटल पॉन्टिक्स। ऑब्वियसली मेटल तो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेंथ होती है, इनमें रेजिस्टेंस होने के, घिसने के चांसेस होते हैं, उतरने के चांसेस होते हैं, इनमें स्टेनिंग होने के चांसेस होते हैं। आप ऐसा कुछ चाय कॉफ़ी लोगे, स्टेन्स अगर इसके ऊपर लग जाएंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। इसमें परमेबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स जस्ट लाइक टू मेटल। तो एक चीज़ जो विनर्ड की मेटल से मेल खाती है वो ये कि परमेबिलिटी है, और एक चीज़ जो मेल नहीं खाती वो स्ट्रेंथ है। इंडिकेशन इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजनल रेस्टोरेशंस, मतलब प्रोविजनल टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। आप विनर्स लगा के सारी ज़िंदगी नहीं बैठ सकते। और काउंटर इंडिकेशंस क्या होती हैं इसकी? डेफिनेटिव रेस्टोरेशंस, डेफिनेटिव रेस्टोरेशंस हम नहीं दे सकते, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं दे सकते इनको। सबसे इम्पॉर्टेंट खतरा होता है स्टेनिंग का, रेजिस्टेंस का, उतर जाने का, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, तो ज़्यादा जैसे ही स्ट्रेस पड़ेगा उतरने का खतरा होता है। तो ये क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन द मटेरियल्स, आइदर ऑल मेटल्स, मेटल सिरामिक्स, और ऑल ceramics or resin विनर्ड। वी हैव another classification which is based on the fabrications, कि आप बनाओगे कैसे। now this is typically a lab technician thing, okay, बट आपको पता होना चाहिए कि फैब्रिकेशन कैसे होती है, ठीक है। these pontics are fabricated individually for the patients and most commonly used types of pontics, कस्टम मेड जो होता है ना, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, और हर पेशेंट के लिए अलग बनता है ये, उनकी डायमेंशंस के हिसाब से। दे ऑफर सुपीरियर एस्थेटिक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटीज़, बढ़िया एस्थेटिक्स होते हैं और बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद प्री फैब्रिकेटेड पॉन्टिक फेसिंग्स जो ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। एक तो कस्टम मेड आपने प्रिपेयर करी हैं इंडिविजुअल बंदे के लिए, एक होती है ऑलरेडी फैब्रिकेटेड। अब उसके अंदर हमारे पास टाइप्स हैं, ट्रू पॉन्टिक, लॉन्ग पिन फेसिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है प्री फैब्रिकेटेड में। ट्रू पॉन्टिक कहाँ पे यूज़ करते हैं, लॉन्ग पिन फेसिंग कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लैट बैक और इंटरचेंजेबल फेसिंग, सैनिटरी फेसिंग्स, रिवर्स पिन्स एंड पॉन्ट टिप्स। सो लेट्स सी, जो ट्रू पॉन्ट टिप्स है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज gingival bulk which can be adapted to the ridge. Okay, so it has a good bulk. Okay, it has a good bulk. Next, it cannot be used when there is reduced interocclusal it cannot be reduced when there is it cannot be used when there is reduced interocclusal distance due to presence of large gingival bulk. अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है, बल्क है, तो तब यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इसके अंदर खुद में काफ़ी ज़्यादा जिंजाइवल बल्क होता है, ठीक है। रिकमेंडेड है मैक्सिलरी पोस्टीरियर एरियाज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर से उठ के आएगा, मैक्सिलरी पोस्टीरियर्स में कौन सा यूज़ करेंगे, आप बताओगे ट्रू पॉन्टिक। अब लॉन्ग पिन फेसिंग, द लिंगुअल सरफेस ऑफ दीज फेसिंग्स इज फ्लैट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पिन्स फॉर रिटेंशन। पिन्स रिटेंशन के लिए हैं, ठीक है। फ्लैट फेसिंग है, रिकमेंडेड फॉर मैक्सिलरी आर्च है,
इट कैन बी रेडली मॉडिफाइड टू अडेप्ट टू द रिज म्यूकोसा. इसको मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं इसके अंदर. तो बेसिक सी बात है, मैक्सिलरी पोस्टीरियर्स में कौन सा देंगे, टूरोपोंटिक देंगे. मैक्सिला में लॉन्ग पिन फेसिंग देंगे. पिन्स होती हैं इसके अंदर रिटेंशन के लिए. इट कैन बी अडेप्टेड. फ्लैट बैक और इंटरचेंजेबल फेसिंग का क्या मतलब होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल स्लॉट इन lingual surface, and this facing is retained by backing with a lug which is designed to engage the retention slot. मेन चीज़ है फ्लैट बैक और इंटरचेंजेबल फेसिंग का क्या मतलब है. इसके अंदर एक स्लॉट है, वर्टिकल स्लॉट. डायरेक्ट पूछेंगे वर्टिकल स्लॉट किसमें है, फ्लैट बैक में. सैनिटरी फेसिंग्स में क्या होता है, रिजेंबल द सैनिटरी पॉन्टिक्स. ओके, सैनिटरी पॉन्टिक्स आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. And the facing has a flat occlusal surface which is customized as needed. It can be customized. Okay, sanitary facing is just like sanitary pontics. Reverse pin facing. The porcelain denture teeth with pins can be altered to obtain the facing. Pins can be altered. It's a porcelain denture, and the pins in the porcelain teeth are ground off, and the precision drill holes are made in the lingual surface of the facing, which act as a source of retention. Okay, so holes are drilled into the lingual surfaces of the facing which act as a retention. It is indicated for cases of deep bite. ठीक है, डीप बाइट अगर किसी को होती है उस केस में आपको रिवर्स पिन फेसिंग्स देनी है. पोर्सलिन डेंचर है, पिंस इसके अंदर हैं, और प्रिसीजन होल्स इसके अंदर जो होते हैं रिटेंशन का काम करते हैं. पॉन्ड टिप्स में क्या होता है, दीज आर यूज्ड व्हेन द टिश्यू कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉन्डिंग शुड बी ऑफ ग्लेज्ड पोर्सलिन. पॉन्ड टिप्स में आपके पास ग्लेज पोर्सलिन होना चाहिए. इट इज़ रिकमेंडेड मैंडिबुलर पोस्टीरियर रिजेस. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैंडिबुलर पोस्टीरियर में पॉन्ड टिप्स यूज़ करते हैं. ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडेनेटस रिज इज हेवीली रिजॉर्ब्ड. मान लो रिज बहुत रिजॉर्ब्ड है, वर्टिकल डायमेंशंस बहुत कम है. द लार्ज जिंजाइवल एम्परेचर अपीयर बिटवीन पॉन्टिक्स एंड रिटेनर्स विच कैन बी अनएस्थेटिक एंड एक्यूमुलेट प्लाक. सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा रिज रिजॉर्प्शन हो जाएगी तो जब आप दांत लगाओगे तो जिंजाइवल एम्ब्रेचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा में गैप है तो ब्लैक कलर के ट्राइंगल्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा अनएस्थेटिक लगेगा. प्लस उसमें प्लाक वगैरह एक्यूमुलेट हो सकता है. दिस कैन बी ऑल्टर्ड बाय फिलिंग द एम्ब्रेचर स्पेस विद पिंक पोर्सलिन, एंड दिस कैन बी डन इन एस्थेटिकली लो प्रोफाइल एरियाज विद लाइक लोअर इंटीरियर्स एंड अपर पोस्टीरियर्स. थोड़ा सा आप उन एम्ब्रेचर्स को पिंक कलर के पोर्सलिन से भर सकते हो. सिर्फ उन एरियाज़ में भरो जिनमें थोड़ा लो लेवल एस्थेटिक्स की ज़रूरत होती है. Then we have a table which is based on the mucosal contact, like pontics with mucosal contacts के हिसाब से. तो पहले I'll show you the pictures of this turopontic, long pin, flat back, sanitary, reverse pin. Okay, let me show you. Can you see the picture? We have turopontic here. Okay, this is the slot. We have slot back. We have reverse pin facing in which we have these holes. We have this pond tip which is for mandibular, and turopontic which is for maxillary. Okay, these are all prefabricated. These are not custom made. These are actually made earlier and not depending on the patient. We're talking about the classification based on the mucosal contact. मतलब mucosa से कौन सा डिज़ाइन कैसे कांटेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से डिवाइड किया हुआ है. एक होता है सैडल पॉन्टिक, एक होता है रिज लैप पॉन्टिक, एक होता है मॉडिफाइड रिज लैप पॉन्टिक. ठीक है, सैडल पॉन्टिक अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास इस टाइप से होता है. ये दांत, ये है सैडल पॉन्टिक, ये रिज है हमारी और ये दांत है. अब क्या होता है, द कनकेव जिंजाइवल सरफेस, इसका ऐसे देखो, ये ऐसे बना हुआ है तो कनकेव है ये. ठीक है, जिंजाइवल सरफेस ओवरलैप्स द रिज बकली एंड लिंगुअली. बक्कल और लिंगुअल दोनों साइड से. जिंजाइवल सरफेस will not have a continuous contact with the ridge. Instead, buccal and lingual ends of the gingival surface will have the contact, and it is least hygienic pontic. हाइजीन इसका बिल्कुल अच्छा नहीं होता, एक्यूमुलेशन हो सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि least hygienic is saddle pontic. Plus it has it overlaps the ridges, buccally and lingually. Then we have a ridge lap pontic. Okay,
So Rizlac sometimes look like this. It has a very low contact with the mucosa. Evolved from the saddle pontic, it resembles natural teeth and is designed to adapt closely to the ridge and satisfy aesthetics. It's very good in aesthetics, as well as it has a concave surface lingually, so it is also good in hygiene maintenance also. Okay. And often leads to inflammation in the tissue contact. It can lead to sometimes this inflammation. Now modified pontic. A modified pontic thing is, it is designed to reduce the tissue contact, okay, and satisfy both aesthetics as well as okay. I have told you about this. This is the modified ridge lab. Okay, this is not the ridge lab. This is modified ridge lab. It look like this. It is good in hygiene also. It is good in aesthetics also. Satisfy both the things. Tissue contact is limited to the buccal surface only. It has T-shaped contact. Vertical arm of T ends at the crust and horizontal arms form the contact. Recommended in maxillary anteriors and posterior regions. Good for maxilla. And modified ridge lap with no embraces is recommended in mandibular anteriors. Okay, so this is the modified ridge lap. As well as I will show you the good diagrams in the end. Okay. So here you can see all the pictures. Maybe I just draw some wrong pictures. This is the conical. I think this is I have correctly drawn. This is ovate. Okay, ovate was not there. I was waiting for ovate. It's very good aesthetically also, and it covers a lot of area. And its particular indication is that just as you extracted the tooth, you just insert it, because it looks like the tooth is actually emerging from the gingiva. So that's why it's just used just after extraction. This is ridge lap. It is not hygienically good, and this is a modified ridge lap, which is very much good with aesthetics as well as hygiene. And this is the one which is your sanitary or this fish belly, because it has a gap in between, so it's not good aesthetically. Okay, so these are the different types of pontics, and I'll cover up the next in the next video. Until then, if you have any comments, you can comment down. Any questions, all are welcome. And I'll see you in the next video. Bye bye.